So this is the next part of physics chapter 3 gravitation. So here it is written chapter 4, but if you see in NCERT it is not chapter 4, it is chapter 3 only. So I call it chapter 3b, chapter 3b, and this chapter is about pressure and flotation. Pressure and flotation. Chapter 3b, pressure and flotation. Okay, so gravitation was the first part, A part of this chapter. This is the next part, pressure and flotation. See, since these topics are not directly related with gravitation, so that's why we call it chapter 3b. And usually teachers also keep half the chapter separate and the second half in another exam. But if in some exam the whole chapter is coming, then we have to learn it chapter part A and part B of chapter 3. Okay, so here it might be written chapter 4 and you will get exercise 4A, 4B, 4C. It does not matter, name does not matter. Okay, here we are going to study about pressure and flotation. Okay, gravitation is already done with us. So what is this chapter all about? Why does a stone sink in water whereas a hollow plastic ball floats? We have to answer this question. How can a ship float on water? Ship is made up of metal but still floats on water. Why does 1 kg iron occupies less volume than 1 kg cotton? We will get the answers to such questions during the study of this chapter. So the first topic which we are starting with in this chapter is thrust. We call it thrust. T-H-R-U-S-T, thrust. What is thrust? Thrust is the total force acting perpendicular on a surface. That is, force acting normally or perpendicular to any surface is known as thrust. Force acting normally. When we use the word normally, we mean perpendicularly. Perpendicularly. Okay, normal means making an angle of 90 degree with any surface or line. That is normal. Normal means perpendicular. Always remember, normal means perpendicular. Okay, so force acting normally or perpendicularly on any surface is called thrust. So that means this thrust is not a new thing. It is a force only. It is a type of force. It is a special type of force. Okay, force which is perpendicular to a surface is known as thrust, or thrust is a perpendicular force or a normal force. So suppose this is a surface. Let me draw a three-dimensional surface for you. Suppose this is top of a table. Okay, okay, so this is, let's say this is top of a table, and on this table suppose you are exerting a normal force, a perpendicular force like this at different places. It can be one force, it can be multiple force, but all these forces are perpendicular to the surface of this table. Okay, then these forces are known as thrust. If at all any of the forces acting like this, which is not making 90 degree with the surface of the table, then that is not thrust. Okay, that is not thrust. Okay, so we know now thrust is a special force which acts perpendicular to any surface. What is the SI unit of force? We have studied in the previous chapter, laws of motion. The SI unit of force is Newton, capital N. So can you tell me what is the SI unit of thrust? Yes, the SI unit of thrust is also Newton, because thrust is nothing but a force only.
Thrust is not a new quantity, it is force only, but only it's a special force because its direction is perpendicular to the surface on which it is acting. So quantitatively, thrust is also a force, and thrust also has SI unit of Newton. It is not a new thing. Okay, don't worry about that. Now we come to pressure, and pressure is very, you can say, widely and frequently used word in our day to day life. तो हम लोग बहुत ये काफ़ी यूज़ करते हैं ये वर्ड। जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वर्कलोड प्रेशर, ये हम लोग जनरली एक, यू कैन से, इमोशनल या साइकोलॉजिकल टर्म के हिसाब से प्रेशर यूज कर सकते हैं। मेंटल प्रेशर, ये भी तुमने सुना होगा, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किसी एक जॉब में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैं बोलूँगा हाँ, एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजरता हूँ, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सिर पे कि मुझे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मुझे बहुत मेंटल प्रेशर लेना पड़ता है टू मेक श्योर दैट एक एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें ठीक से पढ़ा पाऊँ। तो देखो, मैंने वर्ड यूज़ किया मेंटल प्रेशर, प्रेशर, वर्क प्रेशर, ये सब हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। बट देन व्हाट implications are we meaning with this word when we use them? Does it have any physical significance? That's the main thing. Physical significance of pressure. We have to understand the physical significance. Physical significance मतलब, physical significance मतलब significance in physics, in the quantities or the objects around us. हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ये प्रेशर का क्या मीनिंग होता है, उससे उससे रिलेटेड प्रेशर का क्या मीनिंग होता है, ये हमें जानना है। ठीक है। सो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ भी ये लोग ने एग्जांपल दिया है। आई एम गोइंग टू टेक माय ओन एग्जांपल। लेट्स से ओके, I'm sure that every one of you has visited a beach. सब लोग समुंदर किनारे बीच पे तो डेफिनेटली गए हो। सो बीच पे सैंड होती है, और सैंड पे चलते हुए तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, ठीक है। वॉकिंग ऑन सैंड इज डिफिकल्ट। वॉकिंग ऑन सैंड इज डिफिकल्ट प्रोसेस। क्यों डिफिकल्ट होता है सैंड में वॉक करना? बिकॉज द फीट, they they go into the sand, और यू कैन से द फीट ड्राइव्स इन द सैंड। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में मुझे पता है कि पैर धस जाते हैं, ठीक है, और फीट गेट्स धस जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ट मोमेंट में, मेरे को वो फ्रेज अभी निकालना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, वेट। English is a funny language, and while I was searching for धस जाना इन हिंदी, तुम्हें पता ही होगा हिंदी में ये टर्म होता है, धस जाता है, पैर धस जाते हैं रेत के अंदर, ठीक है। सो इंग्लिश में बोलते हैं फीट सिंक्स इन। सिंक, डूबना, और धसना इंग्लिश में एक ही बात है, ठीक है। फीट्स, फीट्स नहीं होता, फीट ही होता है, फुट का प्लूरल फीट होता है, या सो फीट सिंक्स इन द सैंड, ठीक है। तो देखो मैं क्या तुम्हें समझाना चाह रहा, बीच पे जो सैंड होती है उसमें वॉकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि फीट जो पैर होते हैं वो सैंड के अंदर सिंक हो जाते हैं, धस जाते हैं अंदर। तुमने देखा होगा, फिर उसको निकालो फिर आगे जाओ, तो यू कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। अच्छा, वो सैंड अगर वेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो ड्राई सैंड होती है उसमें चलना बहुत डिफिकल्ट है। What about, have you ever noticed lying down? Have you ever noticed lying down in sand? Is it difficult? No, that's fairly easy. Because why is it easy? Because body
डज नॉट सिंक इन सैंड। अगर तुम बीच पे सैंड पे सोए हो तो तुम्हारा बॉडी ऐसा धंस जाता है कि अंदर सिंक हो जाता है सैंड में? बिल्कुल नहीं, बॉडी सिंक नहीं होता। हाँ, चलते टाइम फीट सिंक होते हैं, लेकिन लाइंग डाउन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली तुम लाई डाउन कर सकते हो, इजीली लाई डाउन पोजीशन से उठ भी सकते हो। बॉडी सिंक नहीं होता है सैंड में। तो ऐसा अलग अलग क्यों है? बॉडी तो तुम्हारी एक ही है, चलोगे तो भी तुम्हारे बॉडी का जो वेट है वो एक है, लेकिन लेटोगे तभी भी बॉडी का वेट उतना ही है। बॉडी डज नॉट सिंक इन द सैंड, बट वाइल वॉकिंग फीट सिंक्स इन द सैंड। ठीक है, ये एक चीज मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास। नंबर वन एग्जाम्पल बीच का हो गया, ठीक है। नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, नेल। पता है नेल? नेल मतलब नाखून नहीं, नॉट योर फिंगर नेल्स। नेल मतलब जो तुम विच यू पुट इन द वॉल, विच वी पुट इन वॉल। ठीक है, कोई भी चीज को हैंग करने के लिए नेल डालते हैं ना हम लोग। ठीक है, नेल का तुमने शेप देखा है? सो इट इज पॉइंटेड एट वन एंड and it is blunt or it has a larger surface area on the other hand end। तो ये वाला जो एंड है वो है पॉइंटेड, और ये है ब्लंट। ब्लंट बोलेंगे तो मतलब नॉट पॉइंटेड, फ्लैट। ब्लंट या फिर फ्लैट। फ्लैट और पॉइंटेड तो डेफिनेटली अलग ही है, राइट? ये जो नेल है, इसको तुम जब वॉल में डालते हो तो पॉइंटेड एंड वॉल में डालते हो या ब्लंट एंड डालते हो? ऑफ कोर्स पॉइंटेड एंड डालोगे। ब्लंट एंड डालोगे तो वो जाएगा अंदर नेल में, नेल वॉल पे। बिल्कुल नहीं, वॉल टूट जाएगी, लेकिन वो वॉल के अंदर होल नहीं बना पाएगा। वो वॉल पूरी टूटने लगेगी अगर तुम ज्यादा उसको, अगर तुम हैमर या पॉइंटेड एंड को करोगे और इसको वॉल के पास रखोगे सपोज, ठीक है, तो वॉल में बड़ा बड़ा ऐसा डैमेज हो जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर पॉइंटेड एंड को वॉल में डाला तो वो आराम से अंदर चला जाता है, अंदर जाके फिर वो वहां पे फिक्स हो जाता है, और तुम इसके ऊपर कोई भी चीज हैंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज देखना, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं अभी से बता देता हूँ, क्योंकि अब हम काफी इंटरेस्टिंग बात पे आ चुके हैं। तो एक चीज जरा देखो कि सैंड पे वॉकिंग डिफिकल्ट है, क्योंकि पैर अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज मैं हिंट देना चाहूंगा, एरिया ऑफ फीट इज लेस, इसलिए वो जल्दी अंदर चले जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। अच्छा, बॉडी सिंक नहीं होती क्योंकि कंपेरेटिवली एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इज मोर देन द फीट। बॉडी का एरिया फीट से ज्यादा है, इसलिए बॉडी सिंक नहीं करती। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये जो पॉइंटेड है एंड है वो आराम से अंदर चला जाता है। क्यों? बिकॉज इसका जो एरिया कम है, और ब्लंट या फ्लैट एंड का जो एरिया इज मोर, तो ये अंदर दीवार में नहीं घुसता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, चलो कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग? हाँ, ये वाला अच्छा एग्जाम्पल है, नाइफ। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो तुम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तुम्हें आराम से ये प्रेशर और थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर हमें ज्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, फिर जो भी एग्जाम्पल है तुम उसमें खुद लॉजिक लगा के पता लगा सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नाइफ विथ विच वी कट थिंग्स ऑफ कोर्स। ठीक है, नाइफ का जो एक एंड होता है, लेट मी ड्रॉ अ नाइफ लाइक दिस। ठीक है, एक जो एज होती है नाइफ की वो होती है शार्प, और दूसरी जो एज होती है वो होती है ब्लंट एज। शार्प चीजों से, शार्प एजेस से चीजें जल्दी कट होती है, कट्स इजीली।
मतलब किसी भी चीज के अंदर वो इजिली चली जाती है, घुस जाती है। ब्लंट डज नॉट कट, राइट? शार्प एज कट्स इजिली बट ब्लंट एज डजंट कट इजिली, ठीक है? तो इसमें भी अगर तुम देखोगे, जो शार्प एज होता है इसका एरिया कम होता है, लेस एरिया। थिन होता है ना एकदम पतला, शार्प मतलब लेस एरिया। ब्लंट थोड़ा मोटा होता है, मोर एरिया। करेक्ट? नाइफ का एग्जांपल हो गया। सब में एक कॉमन चीज है, वो एरिया की है, याद रखना, ये मैं बताऊंगा मैं। फोर्थ एग्जांपल इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, ओके यस, स्कूल बैग्स। स्कूल बैग का एक पिक्चर मैं लेके आता हूं यहाँ पे। तो तुमने दो टाइप की स्कूल बैग्स देखी होगी। जनरली जो बच्चे प्रेफर करते हैं, या फिर बच्चों के लिए जो प्रेफर किया जाता है, वो ये टाइप का बैग है, बैकपैक, जिसको बैकपैक बोलते हैं। और इसके जो स्ट्रैप होते हैं ना, ये वाइड होते हैं, वाइड स्ट्रैप्स। इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइड होते हैं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग बैग। ड्रॉ स्ट्रिंग बैग्स। ड्रॉ स्ट्रिंग मतलब उसमें ऐसी स्ट्रिंग होती है। तुमने अगर ये बैग कभी यूज किया है तो यू वुड नो दैट if you put heavy load inside these kind of bags, and if you put them on your shoulder, these strings, they are, because they are thin strings, they hurt more. Okay, but if even if you put heavy books and whatever, these wide straps doesn't hurt much. They are comfortable actually, doesn't hurt much. ओके, फिर से एक बार यहाँ पे नोट करना कि थिन स्ट्रिंग्स जो ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा अंदर प्रेशर बनाती है। मेरे को ये यूज़ नहीं करना था वर्ड, बट फिर भी ठीक है। तो इसका जो एरिया है ना, वो कम होता है, लेस एरिया, लेस एरिया। एंड दीज वाइड स्ट्रैप्स हैव मोर एरिया। ओके, सो सी दिस इज द थिंग। तो अब तो मुझे लगता है 4 एग्जाम्पल मैंने दिए तुम्हें, स्कूल बैग का एग्जाम्पल, नाइफ का एग्जाम्पल, नेल का एग्जाम्पल, और बीच पे वॉकिंग और लाइंग डाउन का एग्जाम्पल। सो फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट in all these cases one new quantity can be understood, which is pressure. And pressure is directly proportional to thrust. थ्रस्ट जितना ज्यादा, प्रेशर उतना ज्यादा। एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना ज्यादा, प्रेशर उतना कम, एरिया जितना कम, प्रेशर उतना ज्यादा। सो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो थ्रस्ट मतलब फोर्स पे भी डिपेंड करती है, परपेंडिकुलर फोर्स पे, और एरिया पे भी डिपेंड करती है। थ्रस्ट से वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन से दैट प्रेशर is directly proportional to thrust upon area. T is thrust, A is area. Okay, so pressure is equal to K times thrust upon area. ये K क्या है? Constant of proportionality. क्या है ये? Constant of proportionality, जिसकी वैल्यू 1 है SI यूनिट्स में। सो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है? तो ये सारे केसेस जो भी हमने देखे, इसका जो रीजन है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। सैंड पे वॉक करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा जो वेट है बॉडी का, वो जो थ्रस्ट एक्सर्ट करता है किस पे? सैंड पे, वो हमारे फीट के थ्रू एक्सर्ट करता है, और फीट का एरिया कम है। इसलिए हमारे फीट
हमारे बॉडी का जो वेट है उसका ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. द प्रेशर ऑफ आवर वेट ऑफ द बॉडी is more when we are walking on the beach. That's why the feet sink in. But when we are lying down on the same beach with the same body, since the area of the whole body is more comparatively to the area of 2 feet, hence the pressure is less, and that's why the body does not sink in. Second example, nail. The pointed end of the nail is put into the wall more easily as compared with the blunt end, because the area of the pointed end is very less compared to the area of the blunt end. So the pointed end exerts more pressure on the wall, and it goes into the wall, it drives in the wall more easily than the blunt end. Knife. The sharp edge of the knife easily cuts through any surface, but the blunt end of the knife does not, because sharp edge of the knife has less area, so the pressure exerted by the sharp edge is more as compared to the blunt edge, and that's why it drives into any surface very easily. School bags. The school bags generally have wide straps, because the pressure exerted by wide straps, since it has more area, will be less on the shoulder of the children, and hence it will not pain when you wear a school bag with wide strap. On the other hand, drawstring bags, they have strings, and if you put heavy books in these kind of bags and you wear it, you feel pain on your shoulders. Why? Because these thin strings have less area, so they apply more pressure on your shoulder. The school bags with wider straps, they apply less pressure on your shoulder, and that's why because they have more area, and that's why they do not hurt you. ठीक है? So this is the whole concept of pressure. So what is the formula for pressure? Thrust upon area. हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. Pressure is thrust upon area. Now I told you what is thrust. Thrust is a normal force, perpendicular force. इसका SI यूनिट क्या है? Thrust का SI यूनिट है न्यूटन, right? Because it's a force. एरिया का SI यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. So therefore SI unit, प्लीज ये नोट कर लेना, of pressure, SI unit of pressure is Newton per meter square. Newton per meter square. SI unit of pressure is Newton per meter square. ठीक है? So ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका दूसरा नाम है पास्कल, नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट फिजिसिस्ट, पास्कल. ठीक है? सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. इसका सिंबल है कैपिटल P स्मॉल a, पास्कल. Okay, so the pressure exerted is said to be 1 Pascal when a force of 1 Newton acts on an area of 1 मीटर स्क्वायर. प्रेशर हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड is said to be 1 Pascal when a force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square. ठीक है? तो प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं, प्रेशर को थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोलते हैं. प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर तुम्हें फोर्स और एरिया बताए तो तुम प्रेशर आराम से निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो रिगार्डिंग प्रेशर. बट ऐसा नहीं है कि मैंने सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए. देर आर सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग प्रेशर्स इन योर डे टू डे लाइफ, जैसे कि some of them to be listed, and you can say you will
you will come across them in your textbook are why high-rise buildings, high-rise building का मतलब पता है? High-rise building मतलब tall buildings, tall towers. Why high-rise buildings have deep and wide foundations? फाउंडेशन होता है ना, हर एक बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के ऊपर वो पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है, राइट? फाउंडेशन अगर वीक है तो बिल्डिंग भी वीक होगा। फाउंडेशन जितना डीप और वाइड है बिल्डिंग उतना स्ट्रांग होगा। और हाई राइज बिल्डिंग का फाउंडेशन डीप और वाइड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाई राइज बिल्डिंग्स का जो थ्रस्ट है ग्राउंड के ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, डीप और वाइड नहीं है, तो क्या होगा कि ये बिल्डिंग का प्रेशर ग्राउंड के ऊपर ज्यादा होगा और बिल्डिंग धीरे धीरे सिंक होके नीचे चला जाएगा, जमीन के अंदर धस जाएगा, टूट भी सकता है पूरा बिल्डिंग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हाई राइज बिल्डिंग्स हैव डीप एंड वाइड फाउंडेशन। व्हाई आर you can say concrete sleepers kept beneath railway tracks? रेलवे ट्रैक्स के नीचे कंक्रीट के स्लीपर्स क्यों रखे होते हैं? तुमने देखे कभी कंक्रीट के स्लीपर्स देखे हैं या नहीं देखे हैं? मैं दिखाता हूँ, नहीं देखे हैं तो। ये देखा है कभी ये कंक्रीट के स्लीपर्स ऐसे? तो ये कंक्रीट के स्लीपर्स का क्या काम है? Why are they laid under railway, beneath railway tracks? Because railway, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो ट्रेन चलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैवी, सो उसका जो थ्रस्ट होगा इट विल बी इमेंस एंड दैट थ्रस्ट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रेशर ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड पे किस पे चल रही हो? ट्रैक पे, और ट्रैक का सरफेस एरिया तो बहुत छोटा है, सो ट्रैक के नीचे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए स्लीपर्स रखे जाते हैं। सो द होल वेट ऑफ द ट्रैक of the train is distributed over the track, whole weight of the tracks is distributed, whole weight of the train over the track is distributed all over these sleepers and the tracks do not sink into the ground। इसलिए वहां पे नीचे अगर तुमने देखा होगा तो वो कंक्रीट के कुछ पत्थर भी रखते हैं, छोटे छोटे कंकड़, which actually absorbs the pressure, distributes the pressure over a large surface area, so the pressure is less। फिर और एक है मिलिट्री टैंक्स, मिलिट्री टैंक्स के नीचे जो उसके जो ट्रैक्स होते हैं उसके व्हील के नीचे, दे आर वेरी वाइड। मिलिट्री टैंक्स हैव वाइड ट्रैक्स, उसको ट्रैक्स ही बोलते हैं ना, और क्या बोलेंगे, जो जिसके ऊपर मिलिट्री टैंक्स चलते हैं। लेट मी शो यू टैंक। सो ये जो टैंक के नीचे तुम देख रहे हो, ये उसका जो ट्रैक होता है वो बहुत वाइड होता है। क्यों? क्योंकि टैंक्स बहुत हेवी होते हैं, टैंक्स आर वेरी हेवी एंड दे गो इन एनी टेरेन। मतलब ऐसा नहीं वो कंक्रीट के रोड पे चलते हैं, वो कच्चे ग्राउंड पे भी उसको चलाते हैं, और ये कच्चे मडी रोड पे ये धंसने नहीं चाहिए अंदर। इसके लिए इसके नीचे एक वाइड ऐसे ट्रैक्स होते हैं विच प्रोवाइड देम ह्यूज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, सो उनका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर डायरेक्शन में और प्रेशर कम हो, इसलिए वो अंदर सिंक ना हो जाए ग्राउंड में उसके वेट की वजह से। So these are the few, you can say, real life examples which we can talk about while discussing pressure and thrust and area। ठीक है, so pressure के बारे में जितनी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी थी
वो मैंने तुम्हें बताया। अच्छा, स्लीपर्स और फुटवेयर के बारे में भी एक चीज़ है कि तुम्हें पता है लड़कियां, गर्ल्स, दे वेयर दिस हील्स। तो कुछ हील्स तो ऐसी होती है विच आर वेरी वेरी थिन, वेरी लेस सरफेस एरिया, थिन हील्स होती है, पेंसिल हील्स बोलते हैं इसको। तो पेंसिल हील बहुत डेंजरस होती है बिकॉज उसमें चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी पहन के ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि पेंसिल हील्स में जो लड़कियां चलती है, मतलब अलग स्किल लेवल है उनका। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ये सब करने के लिए। ठीक है। तो ये जो पेंसिल हील्स है उनका, बिकॉज सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है, तो दे विल एक्सर्ट लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है। सो एंड इट इज़ ईजियर टू वॉक विथ फ्लैट स्लीपर्स बिकॉज प्रेशर कम है तो वेट पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर ऐसे बड़े ट्रक्स होते हैं, उनके वाइड टायर्स होते हैं और मल्टीपल टायर्स होते हैं। इसमें देखो कितने सारे टायर्स हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज इसके ऊपर जो चीज़ रख के जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, दैट दैट might be, very heavy object which has to be transported from one place to another. So for transporting that very heavy object, we require enough surface area so that its weight can be taken. Otherwise वो पूरा जो vehicle है वो नीचे धस जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। स्कूल बैग्स के बारे में बात किया, स्लीपर्स लेट डाउन अंडर द ट्रेन के बारे में बात किया, हेवी मशीनरी, हेवी कार के मोर देन 6 टायर्स के बारे में बात किया, शार्प नाइफ, ऑल पिन। ऑल पिन तुमने देखा होगा, जो तुम्हारे नोटिस बोर्ड का पिन होता है ना, it's very easy to put the all pin from its pointed end but not from the blunt end. Why? Because less area of that pointed end creates more pressure, so it's easy to put into that notice board. ठीक है। So this was all I could talk about force and pressure. अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये देखो, इंटरेस्टिंग है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब देखा है तुमने कभी? तुमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ बच्चों ने तो पढ़ लिया है, तो उनको पता होगा क्यूब क्या है। बाकी लोगों को 8th में शायद पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ क्यूब क्या है। ठीक है, दिस इज अ क्यूब जिसकी साइड है ए। अच्छा, ये ए की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। एंड मास इज 5 kg, m इज इक्वल टू 5 kg। कैलकुलेट द थ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। अच्छा, थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, है ना। थ्रस्ट तो परपेंडिकुलर फोर्स होता है विच इज नथिंग बट वेट, विच इज इक्वल टू m इंटू जी, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 9.8, राइट, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 हम लेते हैं। तो 5 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा ये? 49, क्योंकि 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 होगा, तो 9.8 इंटू 5 49 हो जाएगा, 49 न्यूटन हो जाएगा। अगर जी की वैल्यू 10 लेते तो 50 न्यूटन आता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो थ्रस्ट निकाल लिया। नाउ प्रेशर। सो प्रेशर मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट क्या है? इट इज 49 न्यूटन। Okay, area. Now if you see the area is not given, but we can find the area. अभी ये क्यूब है, तो इसका जो बेस एरिया है ये वाला, that will be a into a। ठीक है, so area is equal to a square, that is 2 into 2, that is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए बिकॉज सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, याद रखो इसको, सेंटीमीटर टू मीटर इज डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर टू मीटर इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर विल बी डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर,
क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हो गए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 10,000। डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो इसका मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, divided by 10 raised to 4. So 4 upon 10 raised to 4 meter square या 4 multiplied by 10 raised to -4 meter square, ये उसका एरिया हो गया। रिमेंबर कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन यू शुड रिमेंबर वेरी वेल। ओके, सो pressure is thrust upon area, thrust is 49 Newton, area is 4 multiplied by 10 raised to -4 meter square। ठीक है, सो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, ये तो ऊपर चला जाएगा, द होल अपॉन 4। सो 49 डिवाइडेड बाय 4, अच्छा ये आ जाएगा पास्कल में। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल सी कि कितना आता है। तो 49 का हाफ कितना होता है, 49 का हाफ अराउंड मेरे ख्याल से 24.5। ठीक है, 24.5, 24.5 का हाफ 12.25, लेट्स चेक। 49 डिवाइड बाय 4, 12.25 is correct। ठीक है, सो योर प्रेशर विल बी 12.25 pascals। Thrust is 49 Newton and pressure is 12.25 pascal। Let's check। 49 Newton, 12.25 इंटू 10⁻⁴ तो हमने लिखा ही नहीं यार, देखा, ऐसी सिली मिस्टेक मेरे से भी होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। इंटू 10⁻⁴ पास्कल्स। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल दोनों लिख सकते हो। अच्छा, ये लोग ने लिखा है 1.225 इंटू 10⁵, मैंने लिखा है 12.25 इंटू 10⁴, दोनों एक चीज है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करूंगा टू द लेफ्ट तो ये हो जाएगा 1.225, लेकिन क्योंकि आई हैव मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट, ये नंबर छोटा हो गया, पहले 12 पॉइंट समथिंग था, अभी 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो यहाँ पे एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, 4 से लेके 5 हो जाएगा। दैट तो तुम्हें पता ही होगा अभी। ठीक है, सो 1.225 पास्कल भी करेक्ट है, 12.25 इंटू 10⁻⁴ पास्कल भी करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ये नोट कर लेना, अगर ये नोट नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, फिर बोलोगे नहीं समझा, ये मत करना प्लीज, क्योंकि अभी नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो देख के तुम कभी भी समझ सकते हो, नहीं समझा तो। ठीक है, कोई ऐसा क्रूशियल इश्यू आ जाएगा जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। ओके, एग्जाम्पल 2 क्या है, अ ड्रॉइंग पिन इज पियर्स्ड इन अ वुडन टेबल विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो फोर्स दिया है 5 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिन ऑन द टेबल इफ द एरिया ऑफ द पॉइंट इज 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। वेरी नाइस। सो ये जो एरिया है इसको कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। सबसे पहले मिलीमीटर टू मीटर मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, या किससे डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? मिलीमीटर टू मीटर, छोटे से बड़े क्वांटिटी में जाना है तो डेफिनेटली डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100 होता है, मिलीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 1000 होता है, लेकिन अगर मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाता है तो डिवाइड बाय 1000 स्क्वायर करना पड़ेगा। सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, तो मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, तो एरिया हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान से देखना, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये 10⁻⁶ ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁻6 बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करता हूँ, 0.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव किया 1 प्लेस टू द राइट। जब मैं इसको 1 प्लेस टू द राइट मूव कर रहा हूँ तो ये मतलब वैल्यू 0.02 से 0.2 बढ़ गई वैल्यू, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। -6 -1 कितना होता है, -7। ठीक है, सो मैंने एरिया को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे फोर्स जो है
वो परपेंडिकुलर है, मतलब थ्रस्ट है. सो फोर्स इज 5 न्यूटन अपॉन 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -7, which is 5 upon 0.2 multiplied by 10 raised to 7, which is 50 upon 2 into 10 raised to 7, right? इंटू 10 upon 10 कर दिया यहाँ पे अलग से मैंने डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए. सो 25 इंटू 10 रेज टू 7 पास्कल. 25 इंटू 10 रेज टू 7 लिखो या 2.5 इंटू 10 रेज टू 8 पास्कल लिखो, दोनों एक बात है. 25 इंटू 10 रेज टू 7 या 2.5 इंटू 10 रेज टू 8 पास्कल, दोनों एक बात है. ठीक है, सिर्फ यूनिट्स में ध्यान रखना कि सारे यूनिट्स एसआई सिस्टम में होने चाहिए, तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो. राइट, ग्रेट. 2.5 इंटू 10 रेज टू 8. सो ये जो एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू गिव यू एज होमवर्क. ओके, वन सेकंड. ठीक है, सो वन पार्ट इज ओवर. प्रेशर, थ्रस्ट प्रेशर वाला पार्ट ओवर है. अभी फ्लूइड से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस वीडियो and note down all the important things, and also do the numericals, note down the numericals, solve the numericals basically. Okay, I will provide you the homework, and I will continue in the next video. See you then. Bye bye.